Hello, dear students. I'm Assistant Professor Rushali Ahir, and in our today's session of fermentation technology, we will learn about the mushroom cultivation. As we all know, in the last session, we have already started with the mushroom, which is a biomass or the fungus which sprouts out from the soil or dead and decaying plants. And this fungus, it has two types. One is poisonous mushroom, and second one is edible mushroom. And the edible mushroom, it has vast importance in the medicinal purposes as well as high nutritional values, as it contains proteins, fibers, as well as various important minerals which are very helpful to improve the digestive system as well as helpful for the medicinal purposes. So nowadays mushrooms are cultivated at the large scale as it have high market demands. So in this session we will study about the mushroom cultivation. This mushroom cultivation, it is carried out in the number of steps. We'll study it in one by one. So there are requirements for the mushroom cultivation is the spawn. Spawn is nothing but the fungal culture, or one can say the seed culture, which is required for the production of mushroom. Then we require paddy straw or sawdust of rubber on which we inoculate our spawn or seed culture. Then we required polythene bags, polythene sheets for the proper arrangement of the paddy straw, as well as potassium permanganate, spirit, Dettol, etc. we required for the maintaining sterilized conditions. So these are the requirements for the production of mushroom. So let's start with the mushroom cultivation process. So the first step in the mushroom cultivation is the spawn production. Now for the starting of mushroom cultivation, we need to buy the spores or the seed culture or inoculant. That inoculant is the spawn. To start growing mushroom, we need spores, and these spores, as you can see in the diagram given below, are grown on the corn cob, on the corn plants or the straws, paddy straws, wheat grains. They are used for the growing of these spores of fungus used for the cultivation of mushroom. Now, depending on the type of mushroom we want to cultivate, the spawn or the spores are utilized. Basically, from the one bottle of spores, we can prepare 2 sacks of the mushroom cultivation. These spores, as you can see here in the diagram, they are broken into 8 pieces, and these 8 pieces are timely placed in the paddy straw for the proper growth and multiplication of these spores. So for the first of all, we need to buy the spores of fungus, and these spores are then broken in the various pieces. So once we buy the spawn or the spores, we go for the cultivation. For the cultivation of mushroom, we need the straws. It may be paddy straw, or it may be raw dust, or remaining of various agricultural products like wheat straws are there,
as well as maize constiplicers are there that are used for the growing purpose of mushroom. So these straws, when we collect them, we need to sterilize to remove all the contaminants from the straw. So for the sterilization purpose, these straws, they are placed in a boiling water for near about half hour. For half hour, we place these straws in the boiling water. This sterilization, it ensures that all the other fungal spores and the harmful bacteria which can contaminate or interfere in the production of mushroom are removed or killed. तो आधे घंटे के लिए हमने क्या किया कि जो भी स्ट्रॉज, पैडी स्ट्रॉज वगैरह या फिर व्हीट स्ट्रॉज थे, हमने उसे स्टरलाइज करके लिया. बॉइलिंग वाटर में हाफ आवर के लिए स्ट्रॉज को हम रखते हैं सो दैट इट गेट्स कम्प्लीटली स्टरलाइज्ड. स्टरलाइजेशन होने के बाद हम उसे पानी से निकाल कर हल्का सा स्क्वीज़ करते हैं जिससे एक्स्ट्रा का जो वाटर प्रेजेंट होता है स्ट्रॉज में वो निकल जाए. बट वी हैव टू टेक केयर दैट उसमें से ज़्यादा पानी ना निकले. नियर अबाउट 60% ऑफ वाटर शुड रिमेन एज इट इज़ इन दैट स्ट्रॉ. हमें स्ट्रॉ ज़्यादा ड्राई नहीं करनी है. 60% वाटर उसमें या फिर 60% मॉइस्चर उसमें एज इट इज़ प्रेजेंट रहना चाहिए. इट विल हेल्प द स्प्राउटिंग ऑफ मशरूम. The straw has to be 60% moist. That is, when you squeeze the straw, no water should be wrung out. मतलब पूरा पानी उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहिए. एक बार हमारे straws sterilized हो गए, then these straws they are ready for the further use. So first step is our straw preparation. आप यहाँ देख सकते हो. तो हमने क्या किया, ये जो पैडी स्ट्रॉज होते हैं या फिर व्हीट के वगैरह जो हम गेहूँ निकालने के बाद जो स्टिक्स बाकी रहते हैं वो स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं, फर्स्ट वी चॉप दैट पैडी स्ट्रॉ इन स्मॉल पोर्शन. तो एक बार हमने चॉपिंग कर ली, देन दे आर प्लेस्ड दीज पैडी स्ट्रॉ, दे आर सोक्ड into the hot water bath. हॉट वाटर में हम क्या करते हैं, इन पैडी स्ट्रॉ को सोक करते हैं फॉर हाफ आवर. आफ्टर हाफ आवर these paddy straws they are removed from the hot water and excess water from these paddy straws they are removed. After this we go for the second step. Second step is the preparation of the bag in which actual production of mushroom will start. So we prepare the bag or start the packing of the straw. तो ये जो हमने स्टरलाइज करके लिए ये स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉज अब हमें प्लास्टिक बैग में पैक करने होते हैं. दैट बैग इज़ नियर अबाउट 12 to 24 इंचेस. 12 into 24 इंचेस की एक बैग होती है, प्लास्टिक बैग. उस प्लास्टिक बैग में हम क्या करते हैं, हमारे जो स्टरलाइज स्ट्रॉ थे वो स्ट्रॉ को हम उसमें फिल करना स्टार्ट करते हैं. तो पहले क्या करते हैं, उस प्लास्टिक बैग में 2 इंच तक स्ट्रॉज को प्लेस करते हैं. प्लेस करने के बाद प्लास्टिक बैग की जो एजेस होती है उस एजेस में से हम हमारा जो स्पॉन था, हमने पहले स्टेप में स्पॉन को ब्रेक करके लिया था जो फंगल स्पोर्स से, वो फंगल स्पोर हम बैग के एजेस में से ऐड करते हैं. सो वी ऐड फॉर द सम पीसेस ऑफ द स्पॉन थ्रू द एजेस ऑफ द बैग. आफ्टर दैट वी ऐड अनदर लेयर ऑफ स्ट्रॉज, स्टरलाइज स्ट्रॉ. फिर से हम 2 इंच का लेयर बनाने के बाद उसमें रिमेनिंग स्पॉन ऐड करते हैं. लाइक दिस वे वी ऐड 4 layers of straws as well as timely we add the spawn in it. हम एजेस में से क्यों ऐड करते हैं स्पॉन, बिकॉज द स्प्राउटिंग ऑफ मशरूम स्टार्ट्स फ्रॉम द एजेस.
So, in the second step, we prepare the bag in which we start the packing of straws into the plastic bag. We fill near about 2 inches of straw in it, and then we crumble or add the spores on the top of the straw along the edges. मतलब साइड से, प्लास्टिक बैग की जो साइड होती है उस साइड में से हमने क्या किया, हमारे जो स्पोर्स थे वो स्पोर्स ऐड किए. स्पोर्स ग्रो आउट फ्रॉम द साइड ऑफ द बैग. बैग की जो साइड होती है उस साइड में से हमारा हमारा जो मशरूम है वो मशरूम ग्रो होने लगता है, स्प्राउट होने लगता है. इसलिए हम एजेस में से ही स्पोर्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पोर्स अलोंग द एजेस. और जो भी स्पोर्स बैग के बीच में पड़े होते हैं, दैट स्पोर्स डू नॉट जर्मिनेट. सो द स्पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ द बैग, ओनली दैट स्पोर्स विल जर्मिनेट. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सी नाउ सेकेंड स्टेप हम यहाँ डायग्रामेटिकली देखते हैं. दीज आर द प्लास्टिक बैग इन विच वी एक्चुअली फिल द पैडी स्ट्रॉ. तो हमारी जो स्टरलाइज्ड पैडी स्ट्रॉ होते हैं वो स्टरलाइज पैडी स्ट्रॉ हम क्या करते हैं, इस बैग्स में फिल करते हैं. दिस प्रोसेस इट इज़ नोन एज बेड प्रिपरेशन. हम एक बेड या फिर एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिस पर हमारा मशरूम ग्रो हो सकता है. तो ऐसे प्लास्टिक बैग में 2 इंच का लेयर हम बनाते हैं. वो 2 इंच का लेयर बनाने के बाद प्लास्टिक बैग के साइड में से हम क्या करते हैं, स्पॉन्स ऐड करते हैं. लाइक दिस स्ट्रक्चर वी कैन सी, साइड में से हम स्पॉन्स ऐड करते हैं. एंड दिस बैग इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. पूरी बैग फिल होने के बाद उसका जो एंड होता है, दैट एंड वी स्क्वीज, हम इसे फोल्ड करते हैं. फोल्ड करने के बाद टाइटली पैक कर देते हैं. आफ्टर पैकिंग इट, ऐसे फोल्ड करके जब हम ऊपर से उसे पैक करते हैं, पैक करने के बाद हमारी बैग जो होती है वो पूरी टाइट पैक हो जाती है. आफ्टर दिस हमें क्या करना होता है, इस बैग को नियर अबाउट 12 से 20 तक होल्स डालने होते हैं. वी टेक एनी पॉइंटेड स्टिक और या फिर कोई भी पिन लेने की. उस पिन के हेल्प से हम इस बैग के चारों ओर होल्स बनाते हैं. दीज होल्स हेल्प इन द प्रॉपर एयर सर्कुलेशन. होल में से क्या होता है, एयर पास होने लगता है. सो एयर सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है और इस होल में से ही हमारे स्पोर्स क्या होते हैं, स्प्राउट होने शुरू होते हैं. एंड दिस प्रोसेस इट इज़ नोन एज पिनिंग. हम पिन से होल लगाते हैं. सो दिस प्रोसेस इट इज़ नोन एज पिनिंग प्रोसेस. ओके, आफ्टर द स्पिनिंग प्रोसेस we place this bag in the dark condition where actual the spawning process starts. तो हमने अभी तक क्या देखा कि स्ट्रॉज को हमने स्टरलाइज कर लिया. स्टरलाइज करने के बाद हमने उसे प्लास्टिक बैग में लेयर वाइज फिल करना स्टार्ट कर दिया और एजेस में से हमारे स्पोर्स ऐड कर दिए. आफ्टर दैट वी गो फॉर द थर्ड स्टेप विच इज़ लेयरिंग पैक इन 4 इंचेस. मतलब हमने थर्ड स्टेप पहले एक्सप्लेन कर दी कि हम क्या करते हैं, 4 स्टेप में लेयरिंग करते हैं. पहला 2 इंच का लेयर दिया स्ट्रॉस का, बाद में स्पोर्स ऐड किए, बाद में फिर से 2 इंच का लेयर देने के बाद फिर से हम स्पोर्स ऐड करते हैं. लाइक दिस वे वी मेक 4 लेयर्स ऑफ स्ट्रॉज एंड रिपीटिंग दिस प्रोसेस फॉर मोर 3 टाइम्स. हम क्या करते हैं, स्पोर्स ऐड करने के बाद इस बैग को अच्छी तरह से पैक कर देते हैं. नाउ हियर यू कैन सी हाउ डज दिस बैग इज क्लोज्ड. द क्लोजिंग इज डन बाय ट्विस्टिंग द ओपन एंड एंड टाई द बैग टाइटली. एक बार हमारी बैग प्लास्टिक बैग पूरी तरह से फिल हो गई, उसके बाद उसका जो लास्ट एंड ओपन एंड बाकी रहता है उस ओपन एंड को पूरी तरह से ट्विस्ट करके टाइटली पैक कर देते सो दैट अदर एयर कैन नॉट पास थ्रू इट.
पैक करने के बाद हमने क्या किया था, होल्स डाले थे. सो हियर यू कैन सी, ये जो हमारी पूरी बैग है, इस पूरी बैग को हम क्या करते हैं, होल्स बनाते हैं. नियर अबाउट 12 to 20 होल्स हम एक बैग को बनाते हैं. दीज होल्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ शार्प स्टिक और एनी अदर पॉइंटेड मटेरियल, किसी भी पॉइंटेड मटेरियल से, या फिर शार्प कोई भी स्टिक होगी तो वो शार्प स्टिक यूज़ करके हम 12 से 20 होल्स इस बैग के चारों ओर बनाते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द साइड्स ऑफ द बैग. दिस हेल्प्स टू प्रमोट द एयर सर्कुलेशन. एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, और जहाँ जहाँ हमने होल बनाए, फ्रॉम देयर द मशरूम स्टार्ट्स ग्रोइंग और स्प्राउटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस होल्स. तो हमारा यहाँ क्या हुआ, जर्मिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने लगी. देन